हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 3.05 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 6th ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ no attention is given to pronunciation in dash method ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਡੀਓਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, थर्ड है CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, डी है ऑल ऑफ दी अबव। देखो जो अपनी फर्स्ट ऑप्शन है ऑडियो लिंगुअल मैथड, ऑडियो लिंगुअल देख लो नाम तो ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ शो हो रहा है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी कि प्रोनंसीएशन ते की है ध्यान दिता जाता है, प्रोनंसीएशन की इस मैथड विच की है इंक्लूडिड है। थर्ड ऑप्शन है अपनी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि लैंग्वेज नूं की है कम्युनिकेशन दे वे नाल की है टीच करवाना, सो उहदे विच भी की है प्रोनंसीएशन ते ध्यान दिता जाता है। पर जो अपनी बी ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, इहदे विच की कीता जाता है कि जो टारगेट लैंग्वेज है यानी मान लो इंग्लिश आपां बच्चों नूं इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, the method of teaching target language without using people's first language is ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ, CLT ਰਿਪਲੇਸਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ CLT ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਟਰਕਚਰਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਜੋ CLT ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ,
तो टीचर की है बच्चों नूं उनके कोल लैके जांदे सी एंड फिर उस सिचुएशन के हिसाब नाल टीचर की है इंग्लिश यूज़ करके बच्चों नूं की है सेंटेंस बनाने सिखाते सी कि जिवें आपां बच्चों ने की है गोलगप्पे किस तरह उन्होंने कहना है कि सानूं इन्ने रुपए दे इन्ने गोलगप्पे दे दो है ना, इस तरह दियां की है एग्जाम्पल्स दे के इस तरह दे के सिचुएशनस का यूज़ करके बच्चों नूं की है इंग्लिश पढ़ाई जाती सी। बट हुण उहदी जगह की है कम्यूनीकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यूज़ हो गया कि टीचर की है कम्यूनीकेशन का यूज़ करते हैं, एक सिचुएशन बनाने की जगह की है वो सीधी कम्यूनीकेशन नूं की है प्रैफरेंस दिंदे है। सो जो CLT है उन्हें की है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग नूं की है रिप्लेस किया सी। सो डी अपना की होएगा करैक्ट आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरैक्ट मैथड। जो डायरैक्ट मैथड है उहदे विच टीच करन दी यूनिट की है। डायरैक्ट मैथड विच की हुंदा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है सिर्फ उही यूज़ की जाती है, कम्यूनीकेट करन विच भी, कुछ सिचुएशन देन विच भी, कोई एक्टिविटी करन विच भी की है सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है, यानी कि बच्चे दी मदर टंग का या किसी होर रीजनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता। सो इहदे विच टीच करन दी यूनिट की है, वर्ड्स है, साउंड्स है, सेंटेंस है या फिर की है ये सब आते हैं। सो जो डायरैक्ट मैथड है ये की है, ये यूनिट की है सेंटेंस है, ये की है सेंटेंस यानी टारगेट लैंग्वेज विच की है सेंटेंस बना के की है बच्चे नूं सिखाया जाता है। लाइक सामने चेयर पई है, दिस इज़ अ चेयर है ना, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, इस तरह के की है सेंटेंस बनाए जाते हैं। सो सी ऑप्शन अपना की होएगा करैक्ट होएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आज दा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। कि हेठ लिखिया विचों ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के अकॉर्डिंग सच की नहीं है, यानी कि केड़ी चीज़ है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड विच इंक्लूड नहीं हुंदी। इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर इज़ प्रैफर्ड, यानी कि इंडक्टिव वे नाल की है ग्रामर टीच करवाई जाती है। इंडक्टिव वे का मतलब क्या होंदा है कि पहला एग्जाम्पल देनी ते फिर की देने रूल्स समझाने। एग्जाम्पल पहला रूल्स बाद विच, एक ही है इंडक्टिव मैथड है, तो रूल्स पहला एग्जाम्पल बाद विच एक ही है डिडक्टिव मैथड है। कि ये विच इंडक्टिव मैथड यूज़ होंदा है। द टारगेट लैंग्वेज इज़ लर्नड थ्रो मदर टंग, कि मदर टंग दे नाल टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये बिल्कुल सही है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड उहदे विच की कीता जाता है, मदर टंग दे विच ट्रांसलेशन की जाती है ना टारगेट लैंग्वेज की, तो ये तो इंक्लूड होंदा है। हाई वैल्यू इज़ गिवन टू एक्यूरेसी, कि जो एक्यूरेसी है उन्होंने हाई वैल्यू दी जाती है, ये भी सही है। टीचर सेंट्रिक रैदर दैन लर्नर सेंट्रिक, ये भी सही है। कि जो एक ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है ये की है टीचर की है ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, बच्चे सिर्फ की है बच्चा या तो सुन रहा है या सिर्फ वो लिखा जो टीचर का की है पढ़ रहा है, यानी कि ये अप्रोच की है टीचर सेंट्रिक है, ये भी सही है। सो आपा ये दसना से कि नॉट ट्रू, यानी कि की सही नहीं है। सो देखो इंडक्टिव टीचिंग ये यूज़ नहीं होंदी, ये की है डिडक्टिव मैथड यूज़ होंदा है, यानी कि बच्चे नूं की है पहला रूल्स सिखाए जाते हैं फिर उन्होंने की है एग्जाम्पल्स दित्तियां जांदियां, यानी ये की है रूल्स ते फोकस होंदा है, सेंटेंस की फॉर्म ते फोकस होंदा है। सो ए ऑप्शन अपना की होएगा सही होएगा कि जो ए ऑप्शन है कि इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर इज़ प्रेफर्ड, एक ये गलत मतलब नॉट ट्रू है आंसर दे अकॉर्डिंग, कि ये चीज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड का पार्ट नहीं है कि इंडक्टिव की जगह डिडक्टिव मैथड की है यूज़ किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, आर्मी मैथड इज़ ऑल्सो नोन एज, कि जो आर्मी मैथड है उन्होंने होर किहड़ा मैथड कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड कहा जाता है, डायरैक्ट मैथड या फिर ऑडियो लिंगुअल, इत्थे एल आएगा, ऑडियो लिंगुअल मैथड या फिर बाईलिंगुअल मैथड। देखो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है उन्होंने ओल्ड मैथड या नैचुरल मैथड कहा जाता है, बट उन्होंने आर्मी मैथड नहीं कहा जाता। डायरैक्ट मैथड में सिर्फ डायरैक्ट कहते हैं एंड बाईलिंगुअल मैथड या फिर ऑडियो लिंगुअल मैथड। सो देखो जो आर्मी मैथड है उन्होंने की है ऑडियो लिंगुअल मैथड नूं आर्मी मैथड कहा जाता है, क्योंकि ये दो लैंग्वेज का यूज़ नहीं होंदा। बाईलिंगुअल मैथड का मतलब तो यह होया ना कि दो लैंग्वेजेस नूं यूज़ किया जाता है। ऑडियो लिंगुअल मैथड का मतलब की है, हुण देखो जो आर्मी वाले होंदे है ना उन्होंने की है जरूरी तो नहीं वो जिहड़ी जगह ते जा रहे हैं
उस जगह की लैंग्वेज भी उन्होंने आती होवे, है ना। सो उन्होंने लिए की है ऑडियो लिंगुअल मैथड यूज़ किया जाता है, यानी कि उन्होंने किसी जगह पर जाते हो जितों की उन्होंने लैंग्वेज नहीं आती, है ना। उत्थे कि उन्होंने छोटे छोटे अपन पता उन्होंने को अलग तरह के फोन होंगे है ना, उस उन्होंने थ्रू उन्होंने की है मैसेजेस भेजे जाते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियो होंगी उहदे विच जो उस लैंग्वेज नाल रिलेटेड होंगी है, जो लैंग्वेज उन्होंने नहीं आती, तो उन्होंने सिर्फ वो कुछ इहो जे वर्ड्स ही होंगे है जो कि आम उन्होंने गलबात विच की समझ लग जान, ज़्यादा कुछ उन्होंने चीज़ां नहीं सिखाई जांदियां। सो ऑडियो लिंगुअल मैथड है जो कि है आर्मी विच यूज़ किया जाता है, सो इसलिए उन्होंने की है आर्मी मैथड किया जाता है। सो सी ऑप्शन की होएगा अपना करैक्ट होएगा। 7th क्वेश्चन देखो आज दा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन as students during teaching in a language classroom is possible through, कि जो स्टूडेंट्स है उन्हों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन टीचिंग के दौरान किवें पॉसीबल है, कि इहो जिहा किहड़ा मैथड है जिहदे विच जदों एक टीचर इंग्लिश सिखांदा है तो बच्चों की की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होंदी है। लैक्चर मैथड है, इंडक्टिव मैथड है, ट्रांसलेशन मैथड है, या फिर डिस्कस एंड डेमोन्स्ट्रेशन मैथड है। देखो लैक्चर मैथड दे विच की है सिर्फ टीचर बोलेगा, इंडक्टिव मैथड विच भी सिर्फ टीचर बोलेगा, एंड ट्रांसलेशन मैथड विच भी सिर्फ की है टीचर ही ट्रांसलेट करेगा। बट जो डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मैथड है, देखो टीचर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेगा, बच्चे उस चीज़ से की है डिस्कशन करेंगे। सो डी ऑप्शन जो है वो की होएगा अपना करैक्ट होएगा, कि डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मैथड विच ही की है सब तो वध की है बच्चों की पार्टिसिपेशन करवाई जा सकती है, जो आ वाले मैथड्स है दिते हुए ऑप्शंस विच। अगर कोई होर मैथड हुंदा लाइक कम्यूनीकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इहदे विच की है ज़्यादा बच्चे करते पार्टिसिपेंट, तो जे ए ऑप्शन हुंदा तो आपां की है CLT लगा देंगे, बट इत्थे सिर्फ डी ऑप्शन है जो डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मैथड यही की है करैक्ट है इन्हां चारां विचों। सो डी अपना करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अप्रोच एम्फेसाइज इंटरैक्शन एज द मीनस एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, कि इहो जिहा केड़ी अप्रोच है या इहो जिहा केड़ा मैथड है जिहदे विच की है लर्निंग अ लैंग्वेज नूं जो गोल है कि लैंग्वेज सिखाई जाए उस गोल नूं अचीव करने की है इंटरैक्शन ते जोर दिता जाता है, कि बच्चे वध तो वध इंटरैक्ट करन तां ही उस अप्रोच के अकॉर्डिंग की है लर्न की जाएगी एक लैंग्वेज। साइलेंट वे है, कम्यूनीकेटिव वे है, ऑरल वे है, या फिर इन्हां विचों कोई नहीं। साइलेंट वे तो बिल्कुल नहीं होएगा, साइलेंट वे दे विच किसी तरह की कोई इंटरैक्शन नहीं होएगी। बच्चे अपने कोले कम्यूनीकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ते ओरल वे, देखो जो ओरल वे है, ओरल का मतलब की है सुनना एंड ओरल का मतलब की है बोलना, यानी ये सुनना तो बोलना दोवें चीज़ां है। बट जिहदे विच सिर्फ इंटरैक्शन होवे वो की है कम्यूनीकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि CLT, जो बी ऑप्शन अपना की होएगा करैक्ट होएगा। ओरल भी ऑप्शन सही है, बट ज़्यादा जो इंटरैक्शन होएगी वो कादे विच होएगी CLT विच होएगी। सो बी ऑप्शन अपना एज कंपेयर टू सी की होएगा ज़्यादा सही होएगा। सो बी की होएगा अपना इस क्वेश्चन लिए की होएगा करैक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द बेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है उसका बेस की है, क्लासरूम टीचिंग है, आउटडोर टीचिंग है, प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस है, या फिर टेक्स्ट बुक है। देखो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है वो की है टैक्सट बुक बेस होंदी है, कि टैक्सट बुक दे विच जो कुछ दित्तियां होईयां चीज़ां, जो स्टोरीज़ दित्तियां होईयां, जो सेंटेंस दिते हुए उहदे विच उन्हां सेंटेंसिस नूं उन्हां स्टोरीज़ नूं की है टीचर की है ट्रांसलेट करता है, एंड ट्रांसलेट करन लई भी की है उन्हां नूं की है बच्चों नूं ग्रामर दे रूल्स बारे दसदा है ना। सो दोनों चीज़ों लिए की है टैक्सट बुक की है इंपॉर्टेंट है। सो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है इसका बेस की है टैक्सट बुक है। सो डी ऑप्शन अपना की होएगा बिल्कुल करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मैथड इज़, कि सब तो पुराना ते क्लासिकल मैथड केड़ा है, डायरैक्ट मैथड है, बाईलिंगुअल मैथड है, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है, या फिर इन्हां विचों कोई भी नहीं है। सो ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मैथड किनू कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड नू कहा जाता है। ओल्डेस्ट इस करके कहा जाता है क्योंकि सब तो पुराना मैथड है, सब तो पहला यही मैथड यूज़ किया जाता सी कुछ भी कोई भी टारगेट लैंग्वेज बच्चों को टीच करवाने लिए। एंड क्लासिकल मैथड इसलिए कहा जाता है
क्योंकि बहुत सारिया क्लासिकल या फॉरन लैंगुएजेस सिखाने लिए की है इसे मैथड नूं की है ज़्यादा प्रैफरेंस दी जाती है। सो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है उन्होंने ही ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मैथड कहा जाता है। सो सी ऑप्शन अपना की होएगा बिल्कुल करेक्ट होएगा। 11th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हु अडॉप्टेड द सब्सटीट्यूशन मैथड इनिशियली, कि सब तो पहला जो सब्सटीट्यूशन मैथड सी किने अडॉप्ट किया सी? दैट्स डॉटसन ने, पाल्मर ने, सीवी रमन ने या फिर किंग्सली ने। सो देखो जो सब्सटीट्यूशन मैथड है, पहला तो सब्सटीट्यूशन मैथड है कि जो टीचर है वो की करता है, एक सेंटेंस बोलता है बच्चे के सामने। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने क्या दैट शी इज़ अ वर्कर, शी इज़ अ वर्कर। उस तो बाद टीचर ने बच्चे के टीचर के पिछे पिछे बोले दैट शी इज़ अ वर्कर। उस तो बाद टीचर बोलिया शी इज़ अ डॉक्टर, कि टीचर ने की किया जो वर्कर है उन्होंने की डॉक्टर नाल की करता रिप्लेस करता, या फिर वर्कर की जगह ते की है डॉक्टर की है सब्सटीट्यूट करता। सो बच्चे टीचर के पिछे बोलणगे दैट शी इज़ अ डॉक्टर, फिर टीचर की करेगा डॉक्टर नू रिप्लेस कर देगा, डॉक्टर की जगह ते कुछ होर सब्सटीट्यूट कर देगा। सो इस मैथड नू की कहा जाता है सब्सटीट्यूशन मैथड कहा जाता है। सो इस मैथड नू की है अडॉप्ट किने किया स्टार्टिंग विच? पाल्मर ने। बी ऑप्शन अपना की होएगा करेक्ट होएगा कि जो पाल्मर है उन्हें की किया सी सब्सटीट्यूशन मैथड नू इनिशियली स्टार्टिंग विच किया अडॉप्ट किया सी, या स्टार्टिंग विच इन्हां ने किया शुरुआत की सी इस मैथड की। बी ऑप्शन अपना की होएगा करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मैथड ऑफ टीचिंग ओरिजिनेटेड इन फ्रांस 1901, कि फ्रांस दे विच 1901 दे विच किस मैथड का की सी जन्म होया सी, या केड़ा मैथड नवा आया सी? फ्रांस विच केड़ा मैथड ओरिजिनेट होया सी? डायरैक्ट मैथड, ऑडियो लिंगुअल मैथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, या फिर इन्हां विचों कोई भी नहीं। सो डायरैक्ट मैथड जो है, जो अपनी ए ऑप्शन है की होएगी सही होएगी। जो डायरैक्ट मैथड है इस मैथड नू की है ओरिजिनेट किया गया सी फ्रांस विच, ताकि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है इनू की है रिप्लेस किया जाए या इस तो वधिया होर कोई मैथड लियांदा जाए। सो ए ऑप्शन अपनी की है बिल्कुल करेक्ट होएगा कि जो डायरैक्ट मैथड है वो कित्थे फ्रांस दे विच की है ओरिजिनेट होया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इन्हां विचों केड़ी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं की, यानी जो टीचर सेंटर्ड होएगी? बाइलिंगुअल मैथड, डायरैक्ट मैथड, ऑडियो लिंगुअल मैथड, या फिर कोऑपरेटिव मैथड। सो देखो जो डायरैक्ट मैथड है वो की है टीचर सेंट्रिक होएगा, चाइल्ड सेंट्रिक नहीं होएगा, क्योंकि टीचर जो है ये सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ते की है जोर देंदे है ना। जे यह चाइल्ड सेंट्रिक होवे तां इहदे विच की है मदर टंग के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, बट बच्चों तो टारगेट लैंग्वेज आप सिखानी है ना। सो टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सो जिहड़ी चीज़ आपां बच्चों को सिखानी है वो चीज़ की है बच्चों को मतलब घट आती है या फिर बच्चों को आती ही नहीं है ना। सो जो टारगेट लैंग्वेज है वो की है ज़्यादा की है टीचर ही यूज़ करता है। सो उस सिचुएशन दे विच की है टीचर ही ज़्यादा की है बोलता है, या ये अप्रोच की है सिर्फ टीचर सेंट्रिक है, चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है। डायरैक्ट अप्रोच या फिर डायरैक्ट मैथड। सो बी ऑप्शन अपना की होएगा करेक्ट होएगा। 14th क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनात्मक अप्रोच है जो वो किस चीज़ को प्रमोट करती है? चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, टीचर सेंट्रिक है, या फिर क्लासरूम नॉइस है, या फिर यह सारे है। सो जो रचनात्मक है वो की है बच्चे दे की है बच्चे ने की कंस्ट्रक्ट किया है ਉਹਦੇ ते डिपेंड है ना। सो एक ही है एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, यानी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट दी अप्रोच है रचनात्मकवाद है वो की है पूरी तरह चाइल्ड सेंट्रिक है। सो ए ऑप्शन अपना की होएगा करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आज का की है लास्ट क्वेश्चन है अपना 15th क्वेश्चन, विच मैथड हेल्प्स टू डिवेल्प स्किल्स इन ग्रामर
रीडिंग, वोकैबुलरी एंड ट्रांसलेशन कि इन्हां विचों किहड़ा मैथड है जिहदे विच ग्रामर भी बच्चे दी सिੱਖਦਾ, रीडिंग भी सीखता है, वोकैब भी सीखता है एंड ट्रांसलेशन करना भी सीखता है। डायरैक्ट मैथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है, बाईलिंगुअल मैथड है या फिर ऑडियोलिंगुअल मैथड है। सो ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी एंड ट्रांसलेशन ये चारों कादे विच आंदे है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड विच आंदे है। सो बी ऑप्शन अपना की होएगा, करैक्ट होएगा। डायरैक्ट मैथड विच तां देखो टारगेट लैंग्वेज यूज़ की जाती है, बाईलिंगुअल मैथड विच सिर्फ 2 लैंग्वेजेस यूज़ कीतियां जांदियां एंड ऑडियोलिंगुअल मैथड विच भी की है, कुछ बच्चे नूं सुनाया जाता है भाषा के रिलेटेड, है ना। सो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है, चारों चीज़ां ग्रामर, रीडिंग, वोकैब एंड ट्रांसलेशन, ये चारों की है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच की आंदियां। सो बी ऑप्शन की होएगा अपना, करैक्ट होएगा। सो स्टूडेंट्स अज का लैक्चर इत्थे ही खत्म हुंदा है। उम्मीद करती हैं कि तुहानूं सब नूं अज का लैक्चर अच्छा लग्या होएगा। कमेंट करके ज़रूर दस्सिओ, लाइक, शेयर एंड सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो नाल। बेस्ट ऑफ लक।